Hello and welcome to Shy Educators. As we are already done and dusted with the previous topics like OSI model, protocols different used at different layers, the 7 layers of the OSI model, we have read about the networking devices and the types of networks, right? Etc. etc. And we have already read about the IP address and MAC address in detail, right? Today we are going to talk about the networking like modes, networking cables used, which comes under your guided network mode and the unguided. And then we're going to discuss about the network topologies. Okay, but before that, let's know the difference between internet, intranet, and extranet. Sometimes asked in exam. Let me tell you, we are going to discuss uh, internet in detail, where we have to read about the cybersecurity, malware, antivirus, viruses, internet, how it came into existence. We have already read about the internet, how it came into existence in OSI model, but although we are going to discuss it separately. But right now you only need to differentiate, you only need to know the difference between the internet, intranet and extranet. What is internet? Internet is where all can access, where all can access. We all can access, right? This is your internet. Okay. And what is intranet? Means it's only between, or it's only within specific range, within a specific range, or we can say employees of a company, employees of a company. Okay, that is your what? Intranet. Okay. And what is extranet? Extranet is between two parties, between only two parties, or we can say two companies, two companies, right? There is company 1, there is company 2. The internet they are sharing, the internet between these two is known as extranet. That is the difference between your internet and extranet. Let's move forward. The other type of questions asked is networking modes. What are these? There are three networking modes. One is your simplex, half duplex, full duplex. Okay, simplex, half duplex, full duplex. We'll discuss them in detail. Okay. Okay, number one is your simplex. What is actually simplex? Simplex is a one-way communication. Simply, let's not make it complicated. It is one-way communication. Okay, it's one-way communication. By one-way communication, what do I mean by that is, you might have noticed when you type on a keyboard, you're typing on a keyboard. Okay, what is that? You're giving an input, you're communicating with your computer, for example. You're typing, right? And it gives you, what are you typing? You're typing and it gives you the output on the monitor, whatever you are typing. But you are doing it a one way, it in a one way communication, right? You're typing, it's your one way communication, right? Simultaneously you're not getting back it, you're not getting back the output simultaneously. Okay, whatever you are typing right now, it is one way communication. Typing something on your keyboard, that is your one way communication. And that type of network mode is known as simplex. Okay, and second one is your half duplex. Half duplex. Okay, simplex is one way, duplex is two way. Now what is then half duplex? It's both directional, both direction communication, or we can say that two-way communication, but it's not
simultaneously. It is both direction or two-way communication, but you have to take this under consideration one at a time. One at a time. What do I mean by this? Take an example of a walkie-talkie. Okay, you might have seen a traffic policeman using a walkie-talkie. So you might have noticed that it's a one-way communication. पहले एक बंदा बात करेगा यहाँ से, ओके, एंड देन वहाँ से दूसरा बंदा बात करेगा. एट अ टाइम बात करेंगे तो वहाँ पे एक कोलिजन होगा. यू विल नॉट बी गेटिंग द पॉइंट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड फुली ओके व्हाट द अदर पर्सन इज कम्युनिकेटिंग. तो एट अ टाइम एक ही बंदा बात करेगा, डायरेक्शन तो दोनों साइड से चल रही है, बट वन एट अ टाइम. दैट इज योर हाफ डुप्लेक्स. तो फिर आपको समझ आया होगा फुल डुप्लेक्स क्या है. ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है. वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी जाएगी, ठीक है ना, और आपको बोलना है कि क्या होता है. यहाँ सीधे डेफिनेशन पूछी जाएगी. अब देखो, जैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यहाँ आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, ठीक है ना, चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना. क्या है ये? आप साइमल्टेनियसली सेंड भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो मैसेज. दैट इज योर बाई डायरेक्शनल टू वे. ये भी टू है, लेकिन बोथ एट अ टाइम, ओके. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये आपका ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया. देखिए जी, एक टेबल मैंने यहाँ इंसर्ट किया है ताकि आप समझ पाए ठीक से. मीडिया को आपको ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. उसमें एक टाइप आपका आता है गाइडेड, एक आपका आता है अनगाइडेड. ओके, तो देखो, गाइडेड में आपके केबल्स यूज होंगे और अनगाइडेड में आपका वायरलेसली हो जाएगा. गाइडेड में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है, कोएक्सियल और ऑप्टिक फाइबर. ठीक है, स्ट्रिप लाइन, माइक्रो स्ट्रिप लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना. फिलहाल हम इन्हीं पे फोकस करेंगे. ये जो तीन चीज़ें जो कॉमन पूछी जाती है एग्जाम्स में. एंड देन अनगाइडेड में आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड आता है. ठीक है, चले फिर हम पढ़ते हैं. ये आपकी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और इसके बीच में डिफरेंस जो है, और फुल डुप्लेक्स जो है आपका, ये फिगर है, आप समझ पा रहे हैं. डेटा ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन. और हाफ डुप्लेक्स में आपका क्या है, डेटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन बट वन एट अ टाइम. ये इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे जो फुल डुप्लेक्स मोड है, both end we can send receive simultaneously. Okay, that is your difference between the simplex, half duplex, etc. Okay, let's move forward. Guided media, guided medium, गाइडेड मोड जो भी है, ये ट्रांसमिशन मोड्स पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिशन मोड्स. ठीक है, मतलब गाइडेड जो आप किसी पर्टिकुलर वायर से होके, किसी केबल से होके, किसी पर्टिकुलर पाथ से होके उस डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, दैट्स योर गाइडेड. सिंपली उसमें सबसे पहले आपकी एक केबल जो हमने अभी बोला, ट्विस्टेड पेयर आता है, ट्विस्टेड पेयर केबल. ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, जब मैं ये पढ़ाऊंगा अभी, इन अ मीन वाइल आई विल शो यू ऑल द 3 टाइप्स ऑफ केबल्स. ओके, उनकी पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिले. बट राइट नाउ जस्ट फोकस. ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है, ये होती क्या है, ऐसे देखो पिक्चर में, फिर भी दिखाऊंगा. इसमें ऐसे ऐसे करके ट्विस्टेड सी छोटी अंदर क्या होती है, लाइंस होती है. ये आपकी पूरी केबल है, ठीक है ना. इसमें एक शील्ड लगा होता है ऊपर से, राइट. अब इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स में दो चीज़ें आती हैं. एक तो आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, एसटीपी जिसको कहते हैं. एक आपका यूटीपी आता है जो अनशील्डेड है. ठीक है, एक क्या आता है आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक आपका आता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट. अब जो ये शील्डेड है, ये कहाँ यूज़ होती है,
फैक्ट्रीज में, ठीक है, मोस्टली। और जो हमारा अनशील्डेड है, ठीक है ना, ये शील्डेड है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज़ होगा। और अनशील्डेड आपका इथरनेट केबल हो गया आपके छोटे मोटे ऑफिस में, ठीक है ना, इथरनेट केबल। और इथरनेट केबल आपने देखा होगा जैसे आपके राउटर में पीछे लगी होती है, एक वहाँ पे पोर्ट लगा होता है, उससे आप इथरनेट केबल उठा के सीधे अपने लैपटॉप में, ताकि एक रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन आपका बना रहे। लैन आपने बहुत टाइम मतलब ऑफिस में देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, यूज़ करते हैं लोग। उसके आगे एक कनेक्टर लगा होता है, कभी कभी पूछा जाता है। ये आपका इथरनेट केबल है, आगे इसका एक कनेक्टर ऐसे लगा होता है, उसमें 8 पिन्स होती हैं। उस कनेक्टर को कहते हैं RJ45। मैं अभी एक पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, RJ45 कनेक्टर, ठीक है। ये एक लैन कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए इथरनेट केबल के आगे लगा होता है, ठीक है। इसी तरह कभी कभी पूछा जाता है टेलीफोन लाइन में कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है। टेलीफोन लाइन में RJ11 यूज़ होता है, ठीक है ना। ये 6 पिन का होता है, इसके आगे ऐसे ऐसे 6 पिन लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कनेक्टर लगा होता है। लेकिन जो RJ45 इसमें 8 पिन होते हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, कोएक्सियल। लेकिन ट्विस्टेड पेयर एक बार फिर से देखो, ये आपका ट्विस्टेड पेयर, मैं अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा। इसमें STP एक आता है, एक UTP आता है, ठीक है ना। और UTP इथरनेट केबल जैसे राउटर्स में यूज़ होता है, RJ45 जैक आगे लगा होता है, दैट इज़ योर ट्विस्टेड पेयर केबल। अभी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। सेकेंड इज़ योर कोएक्सियल, ठीक है, कोएक्सियल केबल। इसको भी मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगा आगे, बट फिलहाल आप देखो टीवी कनेक्शन आपने देखा होगा, केबल केबल नेटवर्क बचपन में देखा होगा, ठीक है। उसको आपने उस केबल को देखा होगा कैसे दिखती है, वो एक शील्ड लगा होता है, थोड़ा सा आगे एक कनेक्टर लगा होता है, उस कनेक्टर का नाम क्या होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। अब देखो CCTV आजकल यूज़ होता है हर जगह, उसमें भी ये केबल यूज़ होती है, समझ रहे हो। कोएक्सियल केबल CCTV में भी यूज़ होती है। CCTV की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ओके, दैट्स योर CCTV फुल फॉर्म, वहाँ पे भी ये यूज़ होती है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, कनेक्टर, सॉरी, इस केबल के आगे जो कनेक्टर लगा होता है, उस कनेक्टर का नाम होता है BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर, BNC की फुल फॉर्म क्या है, बायोनेट नील कॉन्सल मैन, ठीक है, बायोनेट नील कॉन्सल मैन, ये BNC कनेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, वो है आपका फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक केबल, राइट। फाइबर ऑप्टिक केबल, इसको बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट। वाई, बिकॉज फास्टेस्ट सबसे, क्यों, डेटा ट्रेवल्स, डेटा जो ट्रेवल करता है इसमें एट द स्पीड ऑफ लाइट। खुद सोचो आप, स्पीड ऑफ लाइट से जहाँ डेटा ट्रेवल करे, दैट मीन्स इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें कौन सा फेनोमेना यूज़ होता है, देखो फाइबर ऑप्टिक की भी मैं अभी एक आपको दिखाऊंगा पिक्चर। ऐसे अगर हम इसको, ये इसके 3 शील्ड लगे होते हैं, बीच वाला ग्लास, फिर ऊपर से एक क्लैड लगा होता है, और ऊपर से एक शील्ड लगा होता है, ताकि इसको, बिकॉज इसके अंदर जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो ब्रिटल होती है, ग्लास की बनी होती है, ठीक है, गिलास की बनी होती है, तो तभी इसके ऊपर बहुत सारी शील्डिंग की जाती है। इसमें एक फेनोमेना यूज़ होता है, ऐसे लाइट आई, स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आपने बचपन में पढ़ा होगा, और रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर, अंदर से एक ग्लास शील्ड लगा होता है, उसमें से रिफ्लेक्ट होकर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये रिफ्लेक्ट होते 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 डेटा ट्रैवल करेगा वेरी फास्ट, और इस फेनोमेना को कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैकेनिज्म इसमें यूज़ होता है डेटा ट्रैवल करने के लिए। अब देखो जी, फाइबर ऑप्टिक केबल में हमने क्या देखा, लाइट स्पीड से होता है, और इसमें कुछ कनेक्टर लगे होते हैं, उन कनेक्टर्स को SC/ST कनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, SC/ST कनेक्टर। SC क्या होता है, व्हाट इज SC, सब्सक्राइबर कनेक्टर, और ST क्या होता है, सॉरी,
स्ट्रेट टिप। ओके, ये आपका SC, ये आपका SD, ठीक है। और अब देखो जी, इंटरनेट की बैकबोन मैंने बोला था, क्या बोला था, फाइबर ऑप्टिक को इंटरनेट की बैकबोन माना जाता है। वाई? अंडर सी जो हमारा इंटरनेट आता है वो इन्हीं के थ्रू आता है, ठीक है। समंदर के नीचे से लेके आते हैं हम, ये आपका इंडिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ से हमें लेके आना है इंटरनेट, और ऐसे ग्लोबली ये कनेक्टेड लाइंस होती है अंडर सी, राइट। अब देखो अंडर सी क्यों लाते हैं, बिकॉज इट्स सेफ एज कम्पेयर टू ग्राउंड। आपने कभी कभी न्यूज़ में देखा होगा शार्क अटैक ऑन इंटरनेट केबल्स, ठीक है, वो कभी कभी काट लेते हैं इन केबल्स को, राइट। तो लेकिन फिर भी सेफ़ है ये, ग्राउंड पे होती तो बुरे हाल होते, बिकॉज वेन एवर जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ बुरे हाल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ इन केबल्स की, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, अब देखो जी, ये आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर मैंने बोला था, ये अनशील्डेड है। अब शील्डेड में आप देख रहे हो ये लगा है, एक शील्ड लगा है ब्लू कलर का, राइट, और अनशील्डेड में सिर्फ ये वाला लगा है, ठीक है, दोनों में लगा है। और ट्विस्टेड क्यों कह रहे हैं, आप देख रहे हो ये ट्विस्टेड है आपस में, ठीक है, ट्विस्टेड है, ठीक है ना। और इसमें एक ही शील्ड नहीं लगा है, एक तो ये ब्लू कलर का है, और इन ट्विस्टेड के ऊपर पे भी एक देखो, इनके ऊपर भी एक, देयर इज अनदर पेयर ऑफ शील्ड, राइट। इसी तरह एक आउटर जैकेट इसमें भी है, इसमें भी है। और ये अनशील्डेड मैंने कहा था, ऑफिस वगैरह इथरनेट लैन में यूज़ होती है, और अनशील्डेड शील्डेड बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, बिकॉज देयर इज़ रिस्क ऑफ काटपूट। एंड देन कोएक्शियल मैंने बोला था आपको, ये आपकी एक कॉपर मैश लगी होती है ऊपर से, ठीक है। केबल मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, टीवी, ठीक है ना, वो केबल खोल के देखना, ठीक है ना, ऐसे ही एक कोटिंग लगी होगी ऊपर से प्लास्टिक, अंदर से एक मैश लगा होगा, कॉपर मैश, अंदर से कॉपर वायर होगी जो हमारे टीवी केबल में लगती है, ये, ठीक है ना, दैट इज़ योर, ठीक है, दैट इज़ योर कोएक्शियल। उसके बाद देखो फाइबर ऑप्टिक, ये ग्लास की एक क्लैडिंग दिख रही होगी आपको, समझ रहे हो, ये आपका फाइबर ऑप्टिक है, टिप बहुत ही ब्रिटल और बहुत ही डेलिकेट होता है ये, ठीक है। इसी में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके हो जाती है। ये आपका ऊपर से बफर लगा है, एंड दिस इज योर आउटर जैकेट, राइट। ओके, मैं ये इरेज करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। गुड, ये आपकी केबल्स थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और मैंने बोला था RJ45 जैक, ये वाला, ठीक है। इथरनेट, इथरनेट में देखा होगा आपने, इथरनेट 9, राइट, राउटर वाउटर में लगा होता है ये वाला, इसको RJ45 जैक कहते हैं। 8 पिंस का होता है, ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिंस का लगा होता है यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्या पढ़ना है हमें, अब अनगाइडेड। देखो ये गाइडेड हो गया, अनगाइडेड, राइट। अनगाइडेड में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, वो यूज़ होगा, बिकॉज वायरलेस है, ठीक है। अनगाइडेड में देखो, एक बार मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे देखो गामा रे से शुरू होता है, फिर एक्स रेज आती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। अगर आप उल्टा करोगे, वेवलेंथ से जाओगे, देखो जी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, सॉरी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव की, फिर थोड़ी सी कम माइक्रोवेव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और यहाँ देखो गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ है। अब जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, वाइस वर्सा। ये देखो फ्रीक्वेंसी, ये देखो फ्रीक्वेंसी, बढ़ रही है ना फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से घट रही है वेवलेंथ। दैट मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ, और जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वही हम कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। और किसकी है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, एक तो हमारी रेडियो और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, तो इन्हीं को हम ट्रांसमिशन मीडियम में यूज़ करते हैं, राइट। तो बाकी जो आपके हैं विजिबल पोर्शन आता है रेड ग्रीन ब्लू, इसकी वेवलेंथ देखो आप, ये तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशंस देखो। देखो जी, अनगाइडेड मीडिया इतना ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो वेवलेंथ जो है, सॉरी, ये वेवलेंथ आपका है,
यहाँ पे आपका माइक्रोवेव और रेडियो वेव ओवरलैप कर रहा है बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वेवलेंथ मैच करती है, ज़्यादा लेकिन रेडियो वेव्स की ही होती है। अब देखो, जो रेडियो वेव्स है इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेंज इनका ज़्यादा होगा, तो ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, रेडियो, टेलीविजन वगैरह। इसी तरह आपका माइक्रोवेव है, इट्स यूज्ड इन कुकिंग, रडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स, राइट। ओके, रडार में यूज़ किए जाते हैं, जैसे अभी आपने एक न्यूज़ में रिसेंटली देखा होगा, पायरामिड, पायरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में क्या हुआ था, पिरामिड्स के नीचे साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये आपके पिरामिड आपने ऐसे ऐसे देखे होंगे, साइंटिस्ट कह रहे हैं इसके नीचे एक सिटी छुपी हुई थी। साइंटिस्ट कह रहे हैं क्या, इसके नीचे एक सिटी छुपी हुई है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। वो उन्होंने सिंथेटिक अपर्चर रडार से ही डिटेक्ट किया, SAR जिसको कहते हैं, वो रडार में आता है, ठीक है ना, ये रडार, ठीक है ना, माइक्रोवेव में आता है। तो वो कैसे उन्होंने डिटेक्ट किया, इसी वजह से किया, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज़ में आया था, तो पूछा जा सकता है माइक्रोवेव की एप्लीकेशन, रेडियो वेव की एप्लीकेशन। इसी तरह आपका इंफ्रारेड आता है, ठीक है ना। ये देखो, आपने टीवी रिमोट यूज़ किया होगा, टीवी रिमोट में एक बार कैमरा में देखना, बटन दबाना, वहाँ पे एक रेड लाइट बीप होगी, वो एक इंफ्रारेड सिग्नल भेजता है आपके टीवी को, आपकी चैनल चेंज हो जाती है, वहाँ पे आपका इंफ्रारेड यूज़ हो जाता है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, और क्या पढ़ना है आपको, टोपोलॉजीज, आपका गाइडेड अनगाइडेड, मोड्स, केबल्स वगैरह, वी आर डन विद दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज टोपोलॉजी, व्हाट इज टोपोलॉजी? ये एक, इसको कह सकते हैं हम एक फिजिकल या लॉजिकल, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल लॉजिकल अरेंजमेंट होता है, असल में क्या होता है, अरेंजमेंट, या लेआउट कह सकते हैं, किसका, ऑफ कंप्यूटर या नेटवर्क फॉर रिड्यूसिंग क्या, डेटा लॉस या कोलिजन। आई एम सॉरी, आई माइट साउंड अ बिट लो बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है। ओके, उसके बाद इसमें टाइप्स आती हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, देखो टोपोलॉजी आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। टोपोलॉजी मतलब हम कंप्यूटर्स का या नेटवर्क्स का, ये देखो, ये एक कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, तीसरा, इनको अब फिजिकली अरेंज करते हैं इन अ लॉजिकल अरेंजमेंट, ताकि जो डेटा हो, लॉस ना हो, डेटा लॉस का, और डेटा कोलिजन ना हो, ठीक है। ये भी भेजना चाह रहा है, ये भी भेजना चाह रहा है, और डेटा कोलाइड कर रहा है, ना यहाँ पहुँचा है ना यहाँ पहुँचा है, ठीक है ना, और डेटा लॉस हो गया। ऐसे ऐसे अवॉइड चीज़ें करने के लिए हमें एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, एक अरेंजमेंट की ज़रूरत करती है जो लॉजिकल भी हो और ना ही लॉजिकल हो, बट एक इस वे में हो ताकि डेटा लॉस और कोलिजन ना हो। और ये क्या है, एक फिजिकल अरेंजमेंट है, राइट। फिजिकली हम कंप्यूटर्स को अरेंज कर रहे हैं ना, तो इन अ लॉजिकल सेंस, तो वो आपकी टोपोलॉजी होती है। अब इसमें कुछ टाइप्स आते हैं, एक आपका आता है बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बस टोपोलॉजी, लेट्स स्टार्ट विद बस टोपोलॉजी। देखो जी, बस टोपोलॉजी, आप बस से जो वर्ड है उसको कैच करो, बस, ठीक है। बस एक होती है, लोग उसमें काफ़ी सारे होते हैं, राइट। ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन इसको कह सकते हैं आप। ये देखिए जी, मैं अभी पिक्चर भी आपको थोड़ी देर बाद, इन अ मीन वाइल आई विल शो यू, बट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस, ठीक है। ये आपकी फॉर एग्जांपल एक बैकबोन लाइन इसमें होती है, केबल होती है, बस जैसी, इसके साथ कनेक्टेड होते हैं आपके कंप्यूटर। कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, डिवाइसेस भी हो सकते हैं, प्रिंटर हुआ आपका, ठीक है ना, कीबोर्ड्स हो गए आपके, जो भी है, एक कनेक्टेड नेटवर्क बन जाता है लॉजिकल अरेंजमेंट में, ठीक है। ओके, ऐसे ऐसे करके। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें एक टर्मिनेटर लगा होता है, दूसरे साइड दूसरा टर्मिनेटर लगा होता है। ये मेन पॉइंट है, टर्मिनेटर सिर्फ इसी टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज यूजेस टर्मिनल्स। और ये जो आपकी है, सॉरी, ये आपकी एक बैकबोन केबल होती है, इसमें क्या होती है, बैकबोन केबल, वेट अ सेकेंड, बैकबोन केबल, राइट।
और ये आपके नोड्स, इनको नोड्स भी कहते हैं, कभी कभी ध्यान रखना इस चीज़ का, कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, नोड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नोड, 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 ये आपका हो गया बस टोपोलॉजी। अब इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें इसको कह सकते हैं पॉइंट्स, देखो पॉइंट्स में इसमें कह सकते हैं कि ये एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, मतलब एक ही बैकबोन लेयर है, इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। एक पॉइंट से यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से कनेक्टेड है आपके डिवाइसेस, राइट। और इसमें क्या यूज़ होता है, लैन यूज़ होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस जो इसकी होती है, अगर कहीं पे देखो जी यहाँ पे कोई नोड ख़राब हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, वो हमें दिक्कत होती है उसमें डिटेक्ट करने में। फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे लिए, बिकॉज सारे एक ही बस के साथ कनेक्टेड है, राइट। अब देखो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस डिटेक्शन और उसकी अवॉइडेंस के लिए दो चीज़ें होती है इसमें, किसमें, बस टोपोलॉजी में। आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है CSMA CD, दूसरा होता है CSMA CA, ओके। ये दो चीज़ें होती हैं। अब देखो CSMA CD क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक होता है इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन, क्या बोला था मैंने, डिटेक्ट करेगा। और दूसरा क्या करेगा, ये भी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस, ये ट्राई करेगा कोलिजन अवॉइड हो, कोलिजन अवॉइडेंस, कोलिजन ना हो डेटा का, ठीक है ना, वन एट अ टाइम ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है ना। और वो क्या करेगा, कोलिजन डिटेक्ट करेगा इन केस अगर होता है। तो ये दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है इनकी, ठीक है, और किसका क्या काम है। नाउ यू नो दिस वाज योर बस टोपोलॉजी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द स्टार टोपोलॉजी। अब देखो स्टार टोपोलॉजी से नाम से आपको समझ आना चाहिए कि बीच में कुछ है, ठीक है ना, स्टार जैसा ऐसे करके, और बीच में कुछ है, वो सारे कनेक्टेड है इसके साथ। चलो हम बनाते हैं। ये स्टार टोपोलॉजी में एक चीज़ होती है, डिवाइस होती है, ठीक है, अभी बताता हूँ कौन सी डिवाइस होती है। इसके साथ नोड्स कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल इतना ही बनाते हैं हम, ठीक है, नोड्स, राइट। ये जो डिवाइस होती है ना, इसको कहते हैं हब, और हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं हब का क्या काम होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस में, राइट। अब जो हब है इसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या यूज़ होगा, एक तो हब होगा और लैन, दैट इज़ इट, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, राइट। अब देखो जी इसमें फॉल्ट टॉलरेंस जो होगी, फॉल्ट टॉलरेंस ईजी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बस, वाई, बिकॉज एक ही डिवाइस है। अगर कोई दिक्कत आती है किसी डिवाइस में, ठीक है ना, हम हब के ऊपर देखेंगे क्या मसला है क्या नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। और हब का क्या काम होता है हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि जो हब है, जब इसके साथ नोड्स कनेक्ट होते हैं, इसका क्या काम होता है, डेटा ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना। एट अ टाइम सबको देता है ये डेटा, इसका काम यही होता है, यहाँ से डेटा उठाओ और आगे दे दो, ओके। उसके बाद आपका आता है रिंग, रिंग टोपोलॉजी। रिंग से समझ जाओ, गोल है, ये आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका दूसरा सर्कल, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में हमने देखा नोड्स कहते हैं, ठीक है, हब यूज़ होता है, और बस में हब वब यूज़ नहीं होता है, एक बैकबोन केबल होती है और टर्मिनेटर दो लगे होते हैं, बस की बात हो रही है। रिंग में क्या होगा, रिंग में ये देखो, ये दूसरा, ये आपका तीसरा हो गया, कुछ कंप्यूटर्स कुछ नोड्स कनेक्टेड है। अब इस डेटा ट्रांसफ़र को क्या कहेंगे, नोड्स, टोकन, सॉरी, ये टोकन देता है इसको, ये देगा इसको, ये देगा इसको, ये देगा इसको, राइट। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बट वन एट अ टाइम, ठीक है। यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल,
वन एट अ टाइम, मतलब इट कैन बी क्लॉकवाइज, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप समझते होंगे। ओके, अब देखो जी इसमें क्या यूज़ होता है। हमने देखा डेटा ट्रांसफ़र को टोकन्स में यूज़ करते हैं, एफ डी डी आई लैन। एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, राइट। टोकन्स आप समझ चुके हैं, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। टोकन्स में डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये आपके नोड्स लगे होते हैं, ठीक है। ओके, चलो जी, उसके बाद आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा, ये ऊपर से आपका एक ऐसे हब लगा होता है, फॉर एग्जांपल इसके साथ दो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, राइट, ओनली टू, समझ रहे हो, ये आपका एक है, ये आपका दूसरा है। अब इस एक के साथ और दो कनेक्ट होंगे। ट्री से समझ जाओ, ब्रांच बन रहे हैं, ठीक है ना, एक बाइनरी ट्री जैसा बनता है, ठीक है। ये देखिए C1 C2 C1 C2, ये आपका सी, ये आपका आ गया एक रूट नोड, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट नोड, जो पहला नोड होगा, ठीक है ना, इसमें हब लगा होगा, राइट, ये रूट नोड है, और ये इसकी ब्रांच है, क्या है, ब्रांच। और हर एक नोड के अपने अपने रूट नोड होंगे, इसका अपना रूट नोड ये है, इसका रूट नोड ये है, इसका रूट नोड ये है, इसका रूट नोड ये है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल, दूसरा नाम इसको कहते हैं हम मल्टीपल हब कनेक्शन, मल्टीपल हब कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, मल्टीपल हब कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बस और स्टार टोपोलॉजी पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये उनकी कॉम्बिनेशन होती है, स्टार टोपोलॉजी, बस प्लस स्टार टोपोलॉजी, ये भी कभी क्वेश्चन आता है। सो द नेक्स्ट इज योर मैश टोपोलॉजी समझ जाओ आप, ये अभी मॉडर्न यूज़ होता है, क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस है कि मॉडर्न टोपोलॉजी जो होती है, जो मैश टोपोलॉजी होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, मॉडर्न यूज़ है इसका, आजकल यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या है, एवरी नोड, एवरी हम लिखेंगे ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। कैसे, देखो जी, एक, सॉरी, एक, दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, राइट, ये नोड इसके साथ कनेक्टेड है, ये 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 इसके साथ कनेक्टेड है, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला, ईच एंड एवरी नोड, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, राइट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। और कोई बचता है क्या, यस, कौन सा बचता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, इसी तरह ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, राइट, इसी तरह ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ये सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, राइट। क्या बोला मैंने, ईच एंड एवरी नोड विल बी कनेक्टेड, नोड 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 नोड, क्या कहते हैं इनको, इनको हम कहेंगे नोड्स, और ये सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ये एक रिलायबल नेटवर्क होता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क। इसमें जो वायरिंग है, वायरिंग जो इसका मोड होता है ना, उसमें राउटर लगे होते हैं, वायरिंग मोड में राउटर्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो जी इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस में आपने अमेजोन एलेक्सा देखी है, अमेजोन एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट, उसको आप कुछ भी कहते हो, वो एक स्मार्ट अप्लाइंसेस है, तो वो एक एप्लीकेशन है इसकी, स्मार्ट अप्लाइंसेस, इसकी एक एप्लीकेशन है। होम ऑटोमेशन,
होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन देखो कैसे। हे अलेक्सा, ओपन द डोर। हे अलेक्सा, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट्स। आजकल स्मार्ट एसीज आते हैं, स्मार्ट डोर, स्मार्ट लॉक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये वहाँ पे यूज़ होता है मैश टोपोलॉजी। ये एक बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। आपने देखा है वर्चुअल असिस्टेंट्स आपको कैसे स्मार्टली वापस रिप्लाई करते हैं एट अ टाइम, या स्मार्ट अप्लाइंसेज आपके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। तो विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। पॉइंट टू पॉइंट लिंक इसको कहते हैं। रिलायबल होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद आपका सबसे एंड वाला, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। इस पर समझ जाओ आप, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है। जिसमें टू और मोर टोपोलॉजीज टुगेदर हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो, ये वो टाइप ऑफ नेटवर्क है जो चेंज होता है टाइम टू टाइम। टाइप ऑफ नेटवर्क विच चेंजेस, ठीक है। अब देखो, इसमें एक टर्म आती है, ये हाइब्रिड होती है, जिसमें दो चार टोपोलॉजीज आपस में मिक्स हो, ठीक है। यहाँ से बस भी होगा, ठीक है ना, बस के नीचे एक स्टार लगा होगा, ठीक है ना, फिर स्टार के आगे एक मैश भी लगा होगा, ऐसे करके। अभी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको। ये एक क्या है, हाइब्रिड है। अब इसमें एक टर्म आती है जो टेक नेटवर्क चेंज होता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना, टाइम टू टाइम, उसको कहते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, MENET, मिनट, ओके। फुल फॉर्म, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स, ओके। कहाँ यूज़ होता है ये? देखो जी, आपका ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह और क्या, हाँ, इसमें क्या है, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, वाईफाई शेयरिंग एक आजकल नहीं आती है टेक्नोलॉजी। यहाँ आपका नियर बाई शेयर, नियर बाई शेयर, ठीक है ना, आजकल मोबाइल्स में आता है। ये एग्जांपल है। इसमें क्या है, मिनट में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म। और ये करता है चेंज लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन टाइम टू टाइम, ठीक है ना। इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता। लाइक nobody can track you what you are sharing hotspot to whom, what you are sharing over bluetooth, only you and that person can see it। तो इसमें एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता है, लैक करता है, ठीक है। Okay, these are your figures, bus topology. As you can see, there are terminators used. This is your star topology, where there is one hub and every computer is connected to that. There is your ring topology, where tokens are transferred from one node to other node in clockwise or anti-clockwise. It can be anti-clockwise or clockwise also. Tree topology, this is your mesh topology, okay. This is your hybrid topology. That's all. Take care. Bye.